छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन के लिए द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम 3 पार्ट्स में पूरे एक्ट को कवर करेंगे। इस वीडियो में सेक्शन 1 to 12 को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915, इसका नेम है। एक्ट नंबर 2 ऑफ 1915। इसका एनफोर्समेंट छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2000 को हुआ था। एमपी से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में सेम एक्ट ऑलमोस्ट जो एमपी एक्साइज एक्ट हुआ करता था वो अप्लाई होना स्टार्ट हुआ कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है जो जिसका एनफोर्समेंट 17 अगस्त 2017 में हुआ। तो 2017 में अमेंडमेंट हुआ और इसमें एक्ट में 9 चैप्टर्स हैं, 69 सेक्शंस एंड 2 शेड्यूल्स हैं। और सेक्शन 2 डेफिनेशंस प्रोवाइड करता है। इसमें 19 डेफिनेशंस हैं 1 to 19। सो 2.1 प्रोवाइड करता है बियर। सो बियर जो डिफाइंड है उसमें ये सारे टर्म्स हैं: एल, स्टाउट, पोर्टर, फर्मेंटेड लिक्विड मेड फ्रॉम मॉल्ट। सो ये वर्ड्स तो आपको टर्म्स याद करने क्योंकि प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बियर में क्या इंक्लूडेड है एंड क्या नहीं है। सो इफ द क्वेश्चन कम्स एल, स्टाउट, पोर्टर, फर्मेंटेड लिक्विड मेड फ्रॉम मॉल्ट, तो ये सारे ही बियर के अंदर आते हैं। सो यू हैव टू mug up these terms: ale, stout, porter, fermented liquor made from malt. Now, clause 2 provides bottle. Bottle means to transfer liquor. Bottle का मतलब है to transfer liquor from a cask or other vessel to a bottle, jar or flask or other receptacle. So to transfer liquor from a cask or other vessel to a bottle, jar, flask or other receptacle for the purpose of sale. Okay, bottle means to transfer liquor from a cask or other vessel to a bottle, jar, flask or other receptacle for the purpose of sale, and bottling includes rebottling. So this is the definition of bottle. 2 clause 3 provides chief revenue officer. It is the chief revenue officer means such officer which is appointed as chief revenue officer by state government. State government means Chhattisgarh state government. 2.4 provides common drinking house. It provides that where drinking of liquor is allowed for profit or gain of persons. Drinking of liquor is allowed for profit or gain of persons owning, occupying, using, keeping or having the care or management or control of such places by way of charge for using the place or for drinking facilities provided. So simply जहाँ पर लिक्कर को कंज्यूम करने के लिए अलाउ है ऐसे प्लेसेस में फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट और गेन ऑफ पर्सनस, तो ऐसे लोग जो प्रॉफिट और गेन के लिए किसी ऐसे प्लेस को ओन करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, यूज़ करते हैं, कीपिंग करते हैं और उनके मैनेजमेंट और केयर में ये प्लेसेस होते हैं, और ऐसे प्लेस को यूज़ करने के लिए या उसमें ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए वो चार्ज लगाया जाता है उन लोगों के द्वारा जो उसको ओन करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट और गेन। तो ऐसा प्लेस कॉमन ड्रिंकिंग हाउस कहलाता है एंड वहाँ पर ड्रिंकिंग ऑफ लिक्कर अलाउड होता है। Now 2.5 provides denatured means which is rendered unfit for human consumption, or it is rendered unfit in such a manner which is provided by state government. So either it is unfit for human consumption or it is provided by state government that it is unfit for consumption, or it has been declared by state government that it is denatured. Now 2.6 provides excisable article. It means alcoholic liquor for human consumption, any intoxicating drug, and C, opium and poppy straw defined in NDPS Act. So if question comes कि इनमें से कौन एक्साइजेबल आर्टिकल्स हैं, तो ये सारी ही कैटेगरी एक्साइजेबल आर्टिकल है। अल्कोहलिक लिक्कर for human consumption, any intoxicating drugs, or opium or poppy straw defined in NDPS Act. So these all the categories जिस पे excise duty pay करना होता है, they are called excisable articles as per 2.6. So you have to remember this, you have to mug up. Now 2.6a provides excise duty and countervailing duty.
it says that duty as mentioned in entry 51 of list 2 of 7th schedule of Constitution of India. It is saying that entry 51 of list 2 of 7th schedule of India, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो mentioned है वही एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी इस एक्ट के अंदर इसका मतलब है. 2 clause 7 provides excise officer. It says that it is either a collector or any other officer or person appointed under section 7 of the act. So excise officer means collector or any other officer or person appointed under section 7. 2 clause 8 provides excise revenue. Excise revenue means revenue derived or derivable from any duty, fee, tax, penalty, payment or confiscation other than fine by courts of law. So remember this, it is saying revenue derived or derivable from any duty, fee, tax, penalty, payment or confiscation made by any authority other than fine by courts of law. तो जो फाइन इम्पोज करती है कोर्ट्स ऑफ लॉ, अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है या कोई कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट ने कोई फाइन किया है, तो वो फाइन एक्साइज रेवेन्यू नहीं होगा. दैट इज़ नॉट. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. अगर प्रिलिमिनरी में ऑल ऑल आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑल में याद रखना है कि अदर देन फाइन बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ. अगर ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि व्हाट इज एक्साइज रेवेन्यू एंड इट gives options that revenue derived or derivable from, and second any duty, fee, tax, penalty, payment or confiscation, and third fine by courts of law, and option is all of one or two or all of them. So you have to remember that other than fine by courts of law यहाँ पर excise revenue नहीं है. Clear? 2(9) provides export, which means to take out of state otherwise than across or custom frontier. So it says that export means कि state से बाहर ले जाना, पर इसमें across और custom frontier नहीं आता है. So remember this, state से बाहर ले जाना export कहलाता है, but across और custom frontier इसमें excluded है. It is not, export does not mean in this act across or custom frontier. Okay. Hotel provides, it was added in 2017 amendment, hotel. It is given under 2(9)(a). It means building or part of building. Hotel means building or part of building in which residential accommodation provided for business or monetary considerations. Okay, so hotel means building or part of building in which residential accommodation provided. So if it is not residential, that it is excluded from definition of hotel provided in this act. So the hotel means a building or part of building in which residential accommodation is provided for business or monetary considerations. So that means that place is, that building is hotel as per 2(9)(a). 2(10) is omitted. 2(11) provides import, except in phrase import in India. Import means to bring into state otherwise than across a custom frontier as defined by central government. 2(11)(a) provides intoxicant means any liquor or intoxicating drug. So there are two categories, any liquor or intoxicating drugs. Intoxicating drug means in 2(12) it provides that leaves, small stalks of flowering or fruiting tops of an Indian hemp plant. Indian hemp plant का जो leaves है, small stalks हैं, flowering और fruiting tops हैं, वो सारी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की कैटेगरी में आती हैं, इंक्लूडिंग इसके सारे फॉर्म्स जैसे भांग, सिंधी, गांजा. सो इंडियन हेम्प प्लांट, उसके लीव्स, उसके स्मॉल स्टॉक्स, उसका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स, ये सारे हेम्प प्लांट की जो पार्ट्स हैं वो सारे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में इंक्लूडेड हैं, और इसमें भांग, सिंधी, गांजा, इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं. इसका सेकेंड क्लॉज ओमिटेड है. थर्ड प्रोवाइड्स एनी मिक्सचर ऑफ एनी ऑफ द अबव. जो हमने यहाँ डिस्कस करे दीज, ये सारे इनके किसी भी इनका मिक्सचर, किसी भी फॉर्म में इसका मिक्सचर विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल, वो भी इसमें इंक्लूडेड है. एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर एन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग नॉट बीइंग नार्कोटिक ड्रग एज डिफाइंड इन NDPS. तो कोई अदर इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस भी स्टेट गवर्नमेंट जो डिक्लेयर करती है कि ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है, बट इट मस्ट नॉट बी नार्कोटिक ड्रग एज डिफाइंड इन NDPS एक्ट.
सो दिस मे बी द क्वेश्चन कि क्या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में जो नार्कोटिक ड्रग डिफाइंड एनडीपीएस में वो भी इंक्लूडेड है. तो इट इज़ एक्सप्रेसली रिटन इन द definition that it does not include narcotic drug as defined in NTPS Act. Now 213 provides liquor means intoxicating liquor and includes spirits of wine, spirit, wine, tari or tari, I don't know the exact pronunciation, but whatever, it includes tari, beer. So these are the liquor means intoxicating liquor and includes, as per 213, spirits of wine, spirit, wine, tari, beer and all forms of liquids containing alcohol and substances which state government declare to be liquor. So ये सारी कैटेगरीज तो आपको याद रखनी है, और कोई कैटेगरी जो अल्कोहल की और ऐसे सब्सटेंस की जो स्टेट गवर्नमेंट उसको लिक्कर डिक्लेयर करती है वो भी इसमें इंक्लूडेड है. सो लिक्कर मीन्स इंटॉक्सिकेटिंग लिक्कर. इंटॉक्सिकेटिंग लिक्कर जो कैटेगरी में जो चीज़ें आती हैं वो तो लिक्कर है ही, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट, वाइन, टरी, बियर एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लिक्विड्स जो स्टेट गवर्नमेंट लिक्कर डिक्लेयर करती है. Now 213 provides liquor vends means shops that are licensed to sell liquor and doesn't include hotels and common drinking house. So liquor vends प्रोवाइड करता है कि जो शॉप्स जो लाइसेंस्ड हैं सेल करने के लिए लिक्वर को, वो उसका मतलब है लिक्वर वेंड्स, बट इट डज नॉट इंक्लूड होटल्स एंड कॉमन ड्रिंकिंग हाउस एज पर 213(8), और ये 2017 में इसको ऐड किया गया है. 214 प्रोवाइड्स मैन्युफैक्चर and it includes any process whether natural or artificial by which any intoxicant is produced or prepared, and redistillation and every process of rectification, flavoring, blending, coloring of liquor. So ये जो सारा प्रोसेस है ये मैन्युफैक्चर के इस अंदर आता है. ये सारी प्रोसेस जो इसमें दी हुई है कि वेदर बाय वे ऑफ नेचुरल प्रोसेस ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल, जिससे इंटॉक्सिकेंट प्रोड्यूस होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, उसका रीडिस्टिलेशन होता है, और जिसमें रेक्टिफिकेशन, उसको फ्लेवर देना, ब्लेंड करना, कलर देना लिक्कर को, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर में इंक्लूडेड है एज पर सेक्शन 214. नाउ 215 डिफाइंस इंक्लूड एंड इट सेज दैट प्लेस इंक्लूड्स. 215 डिफाइंस प्लेस एंड इट इंक्लूड्स हाउस, बिल्डिंग, शॉप, बूथ, टेंट, एनक्लोजर, स्पेस, वेसल, राफ्ट, व्हीकल. तो एज यू नो एज पर आईपीसी उसमें कुछ कैटेगरीज तो हमें पता है कि जैसे आईपीसी में डिफाइंड है प्लेस, तो आपको पता होगा हाउस इसमें इंक्लूडेड है, वेसल इसमें दिया है, व्हीकल दिया है, आई थिंक टेंट भी है. तो अगर आपने आईपीसी में आपको याद होगा तो ये कैटेगरीज तो आपको याद होंगी, हाउस, बिल्डिंग, टेंट, वेसल, व्हीकल. बट जो रिमेनिंग है जैसे शॉप, बूथ, एनक्लोजर, स्पेस, राफ्ट, तो ये कैटेगरीज आपको ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैटेगरीज, जो 10 कैटेगरीज दी हुई हैं ये प्लेस में इंक्लूडेड हैं. तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा. यहाँ पे प्लेस का मतलब हाउस है, बिल्डिंग है, शॉप है, बूथ है, टेंट है, एनक्लोजर है, स्पेस है, वेसल, राफ्ट, व्हीकल. तो ये सारी कैटेगरीज प्लेस में आती हैं. 216 प्रोवाइड्स सेल. तो it says that any transfer other than gift means sale as per 216. 216A provides sale of liquor and it was added by 2017 amendment. It says that sale of liquor means transfer of liquor from a liquor band after receiving consideration for consumption by the purchaser at a place other than premises of liquor band. सो इट इज़ सेइंग दैट सेल ऑफ लिक्कर का मतलब होता है कि लिक्कर को लिक्कर बैंड से ट्रांसफ़र करना, कंसीडरेशन रिसीव करने के बाद उसके कंजम्पशन के लिए बाय अ परचेसर, बट नॉट एट द प्लेस जहाँ पर वो लिक्कर बैंड की प्रमाइसेस हैं. उसके अलावा कहीं कंज्यूम करने के लिए जो परचेसर परचेस करता है लिक्कर को, एंड इट इज़ फॉर कंसिडरेशन एंड इट इज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ लिक्कर बैंड. तो लिक्कर बैंड से ट्रांसफ़र करना कंसिडरेशन के लिए, कंजम्पशन के लिए परचेसर के किसी अदर प्लेस पे, प्लेस अदर देन प्रेमाइसेस ऑफ द लिक्कर बैंड. सो इट इज़ व्हाट सेल ऑफ लिक्कर मीन्स. स्प्रिट गिवन अंडर सेक्शन 217 clause 17, it defines spirit. Spirit means any
liquor containing alcohol obtained by distillation, whether denatured or not. So any liquor containing alcohol obtained by distillation, तो लिकर अगर डिस्टिलेशन के थ्रू ऑब्टेन करी गई है, चाहे डीनेचर्ड हो ना हो, दैट मीन्स इट इज स्प्रिट. Section 217A clause provides supply of liquor. It was added by 2017 amendment, and it says that supply of liquor means the provision of liquor for consideration at hotels and common drinking house on the basis of license issued with the condition that the consumption shall be made within the premises of such hotels and common drinking house. So supply of liquor का मतलब simply जब hotels and कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में लिकर का प्रोविज़न होता है, वहाँ पर लिकर अवेलेबल होती है, एंड इट इज़ फॉर द कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस. लाइसेंस के बेसिस पे इस कंडीशन के साथ जो इशू हुआ होता है, लाइसेंस इस कंडीशन के साथ इशू होता है कि कंजम्पशन जो होगा वो प्रमाइसिस और होटल्स की एंड कंजम्पशन कॉमन ड्रिंकिंग हाउस की प्रमाइसिस के अंदर ही कंजम्पशन किया जाएगा. इस कंडीशन के साथ लाइसेंस इशू होता है, और वहाँ पर ऐसे होटल्स एंड कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में जब लिकर का प्रोविज़न होता है तो इसको सप्लाई ऑफ लिकर बोलते हैं एज पर 217A. 218 प्रोवाइड्स टरी, विच मीन्स फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जूस ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाम ट्री. जो किसी भी तरह के पाम ट्री से जो फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जूस होता है उसको टरी बोला जाता है एज पर 218. आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट, टरी और टरी वट एवर, but it defines in such words, defined as fermented or unfermented juice drawn from any kind of palm tree. That means tari as per 218. 219 provides transport. It says that transport means to move one place to another within the state. So you have to remember that if it is not within India, it is within the state of Chhattisgarh. So we completed definition clause. Now section 4 as section 3 is omitted, section 4 provides power to declare that what shall be deemed to be country liquor and foreign liquor. So state government may by notification declare what for the purpose of this act or any portion thereof shall be deemed to be country liquor and foreign liquor respectively. तो ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, वो डिक्लेयर कर सकते हैं इस एक्ट में कि कौन सी लिकर कंट्री लिकर होगी और फॉरेन लिकर होगी. नाउ सेक्शन 5 प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ रिटेल एंड होलसेल सेल. Definition of retail and wholesale sale is provided under section 5. It provides that the state government may by notification declare with respect to the either whole of the state or any specified local area, and as regards purchaser generally or any specified class of purchasers. So either generally or any specified class of purchasers, and either generally or for any specified occasion, what quantity of any intoxicant shall for the purpose of this act be limit of retail sale. जो रिटेल सेल की क्वांटिटी सेट कर देगी स्टेट गवर्नमेंट की, इतनी क्वांटिटी तक रिटेल सेल का लिमिट होगा, चाहे वो पूरे स्टेट में हो या किसी स्पेसिफाइड एरिया में हो या किसी परचेसर्स कैटेगरी ऑफ परचेसर्स के लिए हो या सारे परचेसर्स के लिए हो और किसी ओकेशन के लिए हो या जनरली हो, किसी भी तरह से स्टेट गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर कर देगी कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ इंटॉक्सिकेंट शैल बी फॉर द पर्पस ऑफ रिटेल सेल, क्या लिमिट होगी उसको सेट कर सकते हैं. सेकेंड प्रोवाइड्स सेल ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट इन एनी क्वांटिटी in excess of the quantity declared in respect thereof under subsection 1 shall be deemed to be sale by wholesale. तो अगर जो ये लिमिट रिटेल सेल की सेट करी गई है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर सेल किया जाता है तो दिस विल बी सेल बाय होलसेल, नॉट रिटेल सेल. सो in excess of limit set here in subsection 1, that means it is sale by wholesale. Section 6 provides nothing contained in this act shall affect the provisions of the Sea Custom Act 1878, the Indian Tariff Act 1894, except in section 6, the Cantonment Act 1910 or any rule or order made thereunder. So इनमें कोई भी रूल और ऑर्डर बनाएगा, ये सारी कैटेगरीज
अफेक्ट नहीं होंगी, दीज नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ। तो इन एक्ट्स के जो प्रोविजंस हैं वो इस एक्ट के वजह से अफेक्ट नहीं होंगे। दिस इज एक्सप्रेसली गिवन इन द सेक्शन 6। सो दीज आर द कैटेगरीज: द सी कस्टम एक्ट, द इंडियन टैरिफ एक्ट, द कंटोनमेंट एक्ट, any rule or order made under these acts. Section 7 provides establishment and powers thereof. It provides that state government may by notification for the whole or any specified part of the state appoint an officer hereinafter referred as excise commissioner who, subject to such control as the state government may direct, shall superintend the administration of excise department and the collection of excise revenue. So state government एक officer को appoint करेगी who shall be called as excise commissioner and वो superintend करेगा administration of excise department को and collection of the excise revenue को. B provides appoint any person other than the collector to exercise all or any of the powers or to perform all or any of the duties conferred and imposed on collector by or under this act, either concurrently with or in subordination to in exclusion of the collector, subject to such control as the state government may direct. So collector के साथ या उसके subordination में या उसके exclusion में ड्यूटीज़ एंड पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए कलेक्टर के अलावा किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, जो कलेक्टर के अलावा होगा कोई. सी प्रोवाइड्स appoint officers of excise department of such classes and with such designation, powers, duties as the state government may think fit. तो कोई अदर ऑफिसर्स को भी एक्साइज डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया जा सकता है. नाउ डी प्रोवाइड्स government may order that all or any of the powers and duties assigned by or under this act to any officer appointed under clause C shall be exercised and performed by any servant of the government or any other person. तो गवर्नमेंट ये भी ऑर्डर कर सकती है कि जो पावर्स दी गई हैं क्लॉज सी में, वो किसी ऑफिसर, जो क्लॉज सी में जो ऑफिसर को पावर दी गई है, जो अपॉइंट किया जाता है क्लॉज सी में, तो वो एक्सरसाइज करी जा सकती है किसी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट या किसी और पर्सन जो गवर्नमेंट जिसको डायरेक्ट करती है. ई प्रोवाइड्स डेलीगेट, गवर्नमेंट में डेलीगेट टू द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी और एक्साइज कमिश्नर ऑल और एनी ऑफ दिट्स पावर under this act except the power conferred by section 62 to make rules. गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकती है चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी या चीफ कमिश्नर को ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर्स, गवर्नमेंट की खुद की अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती है, बट एक्सेप्ट रूल मेकिंग पावर अंडर सेक्शन 62. गवर्नमेंट में ऑल्सो विदड्रॉ फ्रॉम एनी ऑफिसर और पर्सन ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर अंडर दिस एक्ट. तो पावर्स को विड्रॉ भी कर सकती है गवर्नमेंट, जो पावर इस एक्ट के अंदर दी गई हुई हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ को. जी प्रोवाइड्स गवर्नमेंट में परमिट द डेलीगेशन बाय चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, द एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर टू एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन ऑफ एनी पावर्स कंफर्ड और ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन इट और हिम बाय अंडर दिस एक्ट और एक्सरसाइज्ड और डिस्चार्ज बाय इट और him in respect of the excise revenue under any other act for the time being in force. तो यहाँ पर रेवेन्यू, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, एक्साइज कमिश्नर, कलेक्टर की पावर्स को भी डेलीगेट करने के लिए परमिट किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. नाउ सेक्शन 7 कैपिटल ए प्रोवाइड्स establishment of flying squads. The state government may by notification establish flying squads for investigating into any case of alleged or suspected evasion of excise revenue or any case of alleged or suspected contravention of any of the provisions of this act or the rules made thereunder and shall specify therein the area over which such flying squad shall exercise jurisdiction. तो स्टेट गवर्नमेंट फ्लाइंग स्क्वाड को इस्टेब्लिश कर सकती है ऐसे अलीज्ड और सस्पेक्टेड एविजन ऑफ एक्साइज रेवेन्यू के केसेस को उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और या फिर जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट के उनके कॉन्ट्रावेंशन से रिलेटेड मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और ये स्पेसिफाई करेगी कि स्क्वाड का क्या जुरिसडिक्शन होगा. सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स अ फ्लाइंग स्क्वाड एस्टैब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल कंसिस्ट ऑफ
एक्साइज ऑफिसर्स एंड अदर पर्सनस जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. थर्ड प्रोवाइड्स एक्साइज कमिश्नर्स और अदर पर्सन अपॉइंटेड टू द फ्लाइंग स्क्वाड शैल एक्साइज द पावर्स एंड परफॉर्म द ड्यूटीज एज मे बी कन्फर्ड और imposed under section 7. Now section 8 provides power to prohibit import, export or transport. So it provides that state government may by notification prohibit throughout the state or any specified area, in any specified area, the import, export of any intoxicant. B provides it may prohibit the transport of any intoxicant. C provide make suitable provisions for the effective control of mahua or any other base which is or which can be utilized for the manufacture of liquor. So it is saying the state government नोटिफिकेशन के थ्रू स्टेट के किसी एरिया में या पूरे स्टेट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोक सकती है इंटॉक्सिकेंट के, या उसके ट्रांसपोर्ट को प्रोहिबिट कर सकती है, या सूटेबल प्रोविज़न बना सकती है उसके कंट्रोल को महुआ या किसी अदर बेस के जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिकर के लिए यूटिलाइज होता है. सो दिस इज़ व्हाट सेक्शन 8 इज़. सेक्शन 9 प्रोवाइड्स रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट. सो इट प्रोवाइड्स दैट विदाउट द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट no intoxicant shall be imported, exported or transported except after payment of any duty to which it may be liable under the act or execution of bond for payment and on compliance with such conditions as the state government may impose. तो ये प्रोवाइड कर रहा है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन के बिना किसी भी इंटॉक्सिकेंट का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा एक्सेप्ट जब तक कि जो ड्यूटी प्रोवाइड करी गई है एक्ट में वो नहीं पे करी गई है, या उसके लिए कोई बॉन्ड जो पेमेंट के लिए बॉन्ड है वो नहीं भरा गया है, या नहीं है. इट इज़ एंड दिस इज़ एन एडिशन ऑफ द फर्स्ट कंडीशन दैट कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो कंडीशंस इम्पोज करी है उनका कंप्लाइंस नहीं हुआ है. तो दी बोथ ऑफ ए एंड बी मस्ट बी कंप्लाइड टुगेदर, है ना. दिस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 9. नाउ सेक्शन 10 प्रोवाइड्स रिक्वायरमेंट ऑफ पास फॉर इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट. So it says that no intoxicant exceeding such quantity as the state government may by notification prescribe either generally or for any specified area shall be imported, exported or transported except under a pass issued or deemed to be issued under this act, provisions of this act. So state यहाँ पे ये provide कर रहे हैं कि जो intoxicant है वो कुछ क्वांटिटी से ज़्यादा, नो इंटॉक्सिकेंट एक्सीडिंग सच क्वांटिटी जो स्टेट गवर्नमेंट ने सेट करी है अगर उससे ज़्यादा एक्सीड कर रही है तो उसका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एक पास जो इशू करा जाएगा प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के, उस पास के बिना उसका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है. सो दिस इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10. नाउ सेक्शन 11 प्रोवाइड्स पासेस फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट. So it says that passes for import, export, transport of intoxicants may be granted by collector. So collector is the issuing authority for passes, and it provided that passes for the import or export of such intoxicants as the excise commissioner may from time to time determine shall be granted only by the excise commissioner. So excise commissioner बोल सकता है कि इस कैटेगरी के intoxicants को वही ग्रांट करेगा passes. Second provides such passes may be either general for defined period or kinds of intoxicants. So it provides that such passes may be either generally for defined periods or kinds of intoxicants or special or for specified occasions and particular consignment only. So वो passes कैसे भी किसी general period के लिए हो सकते हैं, या for example for 2 months, it may be for an year, और किसी पर्टिकुलर इंटॉक्सिकेंट्स के लिए हो सकते हैं, या किसी सारे इंटॉक्सिकेंट्स के लिए हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ओकेशन के लिए हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के लिए हो सकता है. सो दिस इज़ हाउ जो पासेस हैं वो ऐसे इशू किए जा सकते हैं. कलेक्टर इज़ द इशूइंग अथॉरिटी, बट अगर एक्साइज कमिश्नर ये बोलता है कि कुछ इंटॉक्सिकेंट्स के लिए वही इशू करेगा तो ही मे टेक द अथॉरिटी एंड वो वहाँ पर एक्साइज कमिश्नर के द्वारा ही पास इशू किया जाएगा. नाउ सेक्शन 12 प्रोवाइड्स passes issued by other authority may be deemed passes granted under this act. The excise commissioner may by general or special order direct subject to such conditions as he may impose that a pass granted by any authority in India shall be deemed to be a pass for
एनी पर्पस अंडर दिस एक्ट। तो एक्साइज कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो ऐसी कंडीशंस को इम्पोज करके ये बोल सकता है कि किसी अदर अथॉरिटी ने इंडिया की अगर पास इशू किया है तो वो पास मान लिया जाएगा इस एक्ट में। सो इस वीडियो में सेक्शन 1 to 12 डिस्कस किया एक्साइज एक्ट, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के। नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम अदर प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे और पूरे एक्ट को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।